Now? Yeah, now. All right, thank you very much. Hello. All right. So my name is Asna Javed, and I am a partner technical specialist for business automation in IBM. अच्छा, थोड़ा सा background दे देती हूँ about my role as a partner technical specialist. आप लोगों को जैसे कितनों ने pre-sales engineer या sales engineer के बारे में सुना है? Half, okay. So basically I am a sales engineer. What I do is that I help the business partners in my particular role specifically in helping them solutioning the IBM products for clients. So say एक client आता है, वो कहता है मेरा कोई problem है, कोई issue है, and then partner कहता है अच्छा हमारे पास IBM का solution है. I'll be the person who will help them out with the presentation, showing how the particular product can solve their problem, client's problem. I will help partners with doing the demos, creating a BOQ. Do you guys know what is a BOQ? Yes. Thank you, Ramesh. So you guys are doing a startup, so you should know what is a BOQ, क्योंकि खाली बनाना नहीं है, बेचना भी है. Alright, so I work with them and I create demos. I show basically the business value of a product. That's my phone. Can you please take a look at it? I'm so sorry. So I show the business value of a product and why a client should buy it, right? So if there is not a business value, who is it? Oh shit, Brindra. I'm so sorry, I need to take this. What hand are you putting? For practice, can you hear? Hello, Assalamualaikum. Oh, hi, Brindra. Brindra, I'm in a presentation right now. I'll call you later on. I have worked on the BOQ. I'll share it with you around 3 p.m. my time. Alright? Okay. Alright, bye. Sorry, that was my partner from Dubai. So, yeah, Pakistan. And then I was leading the hybrid cloud build team where we were co-creating solutions with business partners. And now I am a sales engineer for business partners. Right? Last year I was taking care of data and AI portfolio, and this year I'm focusing on automation. Yeah. So IBM keeps on changing my role. They think कि एक साल में एक जगह पे बहुत excel कर लिया. No, just kidding. All right. So today I'm going to talk about the importance of. That is a part of the business process. Can you go next? All right. So before getting into details, what I'm going to talk about today is this. I'll be talking about what is a business process, some of the key attributes. I'll be talking about the business process life cycle. I'll be giving you an example so you guys can relate to it, what I'm talking about. Then I'll be talking about processes versus projects versus procedures, cause बहुत ज़्यादा पी चल रहा है तो बंदा confused हो जाता है. और उसके बाद I'll be talking about the importance of business processes for a startup. And lastly, I'll be talking about some of the examples of business process, which I won't be getting into details, like types of business processes. All right. So if we start with business process, basically क्या होता है? कोई भी चीज़ का प्रोसेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं केक बना रही हूँ, ठीक है? केक खाने का दिल कर रहा था इसलिए केक की एग्जांपल दे रही हूँ. यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. सो फॉर एग्जांपल मैं केक बना रही हूँ तो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स रखूँगी. उनके लिए मेरे पास सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स होंगे, वेट इंग्रेडिएंट्स होंगे, मेरे जो भी बर्तन होंगे. उसके बाद फिर मैं उसको बनाऊँगी, एक मिक्सचर बनेगा, वो बेकिंग कर सकते हैं बाकी चीज़ों से. अट्रैक्टिव मज़े का बनाना. सो एंड देन इट इज़ specific and has established start and end points. ठीक है? So established start and end points का मतलब क्या है? Again केक की एग्जाम्पल. स्टार्ट मैंने लेना है अपने, ये सिर्फ रिजिड चल रहे हैं, अच्छा बस सही है, हमने ये डिफाइन कर दिया, हमारा परफेक्शन होगी. ऐसे नहीं होता. ये हाँ, the trial and error, yeah, it's
I mean, not infinitely add infinitive simulation, but एक simulation ठीक है and then let's go on. Mostly it's trial and error. You know, आप try करते हो, आप देखते हो यार क्या हुआ, ठीक है. But at first you need to obviously make sure that everything is there. Whatever comes in your mind or your team's mind, you guys are sitting there, you guys are doing a design thinking, you guys are brainstorming, you come up with a perfect solution, ठीक है. Say this is a perfect solution for you, but the rest of the 5 things, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, right? You go, you iterate, you change that, ठीक है. Once everyone is on the same page, all the stakeholders, go and try it out. Yep, then go and implement it, right? It may or may not be perfect, right? As I said, and honestly nothing is perfect. There is always a chance for improvement. So आप जाओगे, आप जाके उनको बेचोगे, या चलो आप बेचना छोड़ दो. You start with hiring people. Just an example. So आपने hiring process किया, आपने देखा अच्छा यार मैंने ये steps refine किए थे कि अच्छा कोई CV भेजेगा, उसको review किया जाएगा, इंटरव्यू की कॉल आएगी, HR होगी, फिर टेक्निकल होगा, उसके बाद जो है वो हायर हो जाएगा, ठीक है. बट देन यू रियलाइज्ड कि यार HR भी हुआ, टेक्निकल भी हो गया, लेकिन दिस पर्सन इज नॉट रियली अ पीपल्स पर्सन. तो मुझे शायद इसका इंटरव्यू मैनेजर से भी कराना चाहिए था, राइट? इन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हायर समवन, you're going to add a managerial interview part there, right? So it's like that. It's a trial and error thing. But most of the time आपका business process जो है ना वो जब आपने इतना मतलब किया होता है, brainstorming की होती है, some design thinking की होती है, तो अच्छा निकल आता है, yeah. And then you need to obviously implement your process, like I said, or then you need to monitor the results. So monitoring the results mean, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आपने बंदे को हायर किया, आपने रियलाइज किया कि नहीं ही इज़ नॉट अ पीपल्स पर्सन, राइट? मैनेजर का क्या काम होता है, वो देखता है कि यार ये बंदा टीम के साथ किस तरह से चलेगा, इंडिविजुअली किस तरह से चलेगा, टास्क सही से करेगा नहीं करेगा. क्योंकि एक टेक्निकल बंदा देख रहा होता है अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट से, इसको कितना आता है, कोडिंग कितनी आ रही है, प्रोग्रामिंग कितनी आ रही है, या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं. ऑलवेज यू कैन चेंज देम, यू कैन मेक अ न्यू plan or make it, maybe add a version of this. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, because this is normally what we do. We every time we are doing something, there is always version 1, version 2, version 3. Even आपकी CV बन रही होगी version 1, version 2, version 3. So yeah, that's how it works. Next example थी employee offboarding process की, so which maybe you guys can relate to. आप लोगों में से एक बंदे ने कहा यार मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोना कंटिन्यू हेयर विद यू गाइस. सो आपने सबसे पहले क्या हुआ कि HR ने इसको एक्नॉलेज करना है. फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मे बी यार आई रियली नीड दिस पर्सन बिकॉज उसकी टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, या वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं ओवर द ईयर्स, आई वांट दिस पर्सन, लेट्स निगोशिएट, राइट? निगोशिएट का मतलब ये है कि मैं सैलरी इंक्रीमेंट बोलूँगी, या मैं कहूँगी अच्छा मैं तुम्हारा बोनस ज़्यादा कर देंगे, हम तुम्हें लीव ज़्यादा दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे. तो आप निगोशिएट कर रहे होते हो. सो देन देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन. फिर आप जाते हैं जी अच्छा नहीं है, डिस्कार्ड हो गया. देन यू गो टू द नोटिस पीरियड एंड फाइनल सेटलमेंट्स कि जो भी आपका रिमेनिंग है, आपका मे बी योर ग्रेजुएटी और वट एवर, राइट? आप उसके ऊपर जाते हैं. देन द सेकेंड आगे उसके बाद जो है इट्स प्लानिंग एंड पेंडिंग प्रोजेक्ट्स एंड यू नो यूर साइनिंग द टास्क. जो भी मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, आई एम गोना लीव इन लाइक 2 वीक्स से, आई नीड टू गिव इट टू द पर्सन नेक्स्ट टू मी कि यार ये चीज़ें हैं कर लो. कभी कभार इतना अच्छे से नहीं होता. So like I have been through this recently. So as I said, I was taking care of data and AI. Now I'm in automation, and the guy who was handing over me things was leaving, and he was in Egypt. I'm in Pakistan. Time difference, छुट्टी का difference, मेरा weekend, उसका weekday. So it was like a mess when he was handing over things to me. But yeah, like this is something that's there. You need to plan that how this is going to happen. Then you need to hand over and do the knowledge transferring, and lastly the
exit interview. So this is a complete business process of an employee of boarding. कि आपने उसकी resignation भी accept करना है, आपने उसके सारी जो अगर negotiate करना है तो वो भी करना है, उसके लवाजमात वगैरह सारे देने, आपने मेक श्योर करना है कि उसने अपने जितने भी पेंडिंग टास्क हैं वो कंप्लीट किए, उसने जो भी नॉलेज ट्रांसफ़र अगले बंदे को करना था वो कर दिया, और फिर आखिर में एक गुड बाय इंटरव्यू आपने अगर लेना है. मोस्टली ये कॉर्पोरेट्स में होता है एन एग्जिट इंटरव्यू, बट इफ़ यू वांट टू ऐड दैट इट्स अप टू यू, इफ यू डोंट देन अप टू यू. बट या कि अच्छा सही है, सारा कुछ हो गया, ठीक है, ओके, गुड लक, मे बी इन 2 years, 3 years, 4 years we'll see each other again. So this is how it happens. That's a complete example of a business process. Next. All right. So I was talking about a lot of challenges. So that's a project. Project is part of a process. It's not replacement, or it's not a new process. And then when you talk about the procedures, is basically prescribed way of undertaking a process, a part of the process. So basically procedure क्या है कि आपने उस process को implement कैसे करना है. So all the steps involved, saying cake baking के अंदर you need to gather the ingredients, you need to again mix the ingredients, and yeah. प्रोसीजर कैसे करना है, किस तरीके से विस्क करना है. यस, project is basically implementing something new or making a change. So again, as I said, कि अगर केक में आपने चेंज करना है, वनीला की जगह चॉकलेट बनाना है, तो दैट्स अ प्रोजेक्ट. So, but making a cake is not a project. No, that's a process. That's my end goal, that I want to eat a cake. A cake is my end goal. I need a cake. So In that process is a project. Yep. Adding an ingredient to it is a project. Say मेरा देखिए एज अ स्टार्टअप मेरा एंड गोल है सेल करना, बेचना, ठीक है. मेरा एक प्रोडक्ट है, अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोडक्ट, ऑल गुड. ऑलराइट, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिपोर्टिंग टूल, राइट. सो मेरा एंड गोल था कि मैं अपना रिपोर्टिंग टूल सेल करूँगी, ठीक है. तो एंड गोल मेरा सेल्स है, बेचना है मैंने, ठीक है. मगर मेरे पास मीनवाइल एक और टूल आ जाता है जो कि रिपोर्टिंग के साथ साथ प्लानिंग भी कर रहा है, या प्लानिंग टूल है. प्रोसेस मेरा बेचना ही है, यानी एंड गोल मेरा बेचना है, ठीक है. बीच में मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आ गया कि जी यार ये भी बेचो, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस सेम होगा कि जी आपने क्लाइंट के पास जाना है, आपने डेमो करना है, आपने बिजनेस वैल्यू बतानी है, आपने ट्रायल देना है, आपने बेचना है. प्रोसेस सेम है, प्रोजेक्ट डिफरेंट है. डज दैट मेक सेंस नाउ? yeah. इफ यू कंफ्यूज आस्क मी, नो वरीज. हाँ, आई गो स्ट्रेट, यू गो लाइक पीछे से. हाँ, हम डराने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं, बच्चों को. सो प्रोसेस, कोई भी चीज़ आपका एक एंड गोल पे रीच करना, एक स्टेप्स लेके, वो प्रोसेस है, ठीक है. प्रोजेक्ट कैन बी अ न्यू थिंग दैट यू क्रिएटेड, और उस एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर कोई कोई नई चीज़ डाल दी, मतलब एक प्रोडक्ट के अंदर आपने एक नया फीचर इम्प्लीमेंट कर लिया, दैट्स योर प्रोजेक्ट. हाँ, तो एंड गोल आपका फिर भी प्रोजेक्ट डिफरेंट है. Does it make sense? Yeah. Zabardast. Can we go next? All right. The importance of business processes for a startup, मेरे ख्याल से अभी तक जितना मैं बोल चुकी हूँ, वो इम्पोर्टेंस ही मैं बता रही थी कि क्यों ज़रूरी है एज अ स्टार्टअप आपके लिए बिजनेस प्रोसेसेस होना. क्योंकि आप लोगों ने एट द एंड चीज़ को बेचना है, आपने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है. जैसे आपकी अगर डेवलपमेंट टीम है तो उसके कुछ टास्क होंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें अचीव करनी है, तो उनका एक प्रोसेस होगा कि यार एक टीम के अंदर ये 4 लोग हैं, इन्होंने ये चीज़ ऐसे डेवलप करनी है, या इन्होंने
बैकएंड पे काम करना है, इन्होंने बैकएंड के से एरर्स को एलिमिनेट करना है और प्रोडक्ट को रनिंग में रखना है। वो उनका एक जो अंदर टास्क चल रहा है और वो एक प्रोसेस है, ठीक है। सो बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि वी कैन गेट कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ डेवलपिंग द प्रोडक्ट एंड देन वी फॉरगेट कि यार हमने इसको बेचना भी है, हमने इसको मार्केट भी करना है, हमने जो है आगे कस्टमर्स को भी ऑन बोर्ड करना है। तो ये चीज़ें जो कस्टमर ऑन बोर्डिंग हो गई, सेलिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये बिजनेस प्रोसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम कि आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं, नॉट जस्ट कि आप बैठे हुए और डेवलप किए जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A lot of startups in Pakistan do not understand the value of business processes, and honestly a lot of companies don't understand them either. They think अच्छा सही है, हमारा काम चल रहा है, चलता रहे, खैर है। मगर when these business processes are available or they are defined और वो एक चीज़ है आपके पास, देन आपका काम जो है वो ऑटोमेट हो जाता है, सीमलेस हो जाता है। फिर आप जो है ना फजूल चीज़ों पे टाइम नहीं वेस्ट करते कि अच्छा यार तुमने वो वाला टास्क क्यों नहीं किया, तुमने वो चीज़ क्यों नहीं की, तुमने बेचने जाना था तुमने क्यों नहीं बेचा, तुमने मार्केटिंग करनी थी क्यों नहीं की। आपने जब प्रोसेसेस डाल दिए ना, तो फिर आपने उसके बाद उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स को टास्क भी असाइन कर दिए, तो देन इट बिकम्स ऑटोमेटेड। एक चीज़ हो रही है, उसको पता है मैंने करना है, ये मेरा चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस प्रोसेसेस को अपने स्टार्टिंग से ही डिफाइन करना है। टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नाउ अंडरस्टैंड। सेल्स प्रोसेस है, you talk about customer services, that's a part of type of business process. You talk about, and these are like the common that are applicable for any business. So ये लाजिम होंगे no matter what. Sales process must, हर business के लिए, छोटा business, बड़ा business, retail, banking, telco, wherever you're going, must है sales process, right? Customer service must है, ठीक है। Employee onboarding must है, obviously you need to onboard people, you need to hire people, right? There need to be a process कि यार इस तरह से hire करेंगे और हमेशा इसी तरह से करेंगे। हो सकता है आगे जाके changes कर लेंगे, again as I said flexibility है, होगा, लेकिन process define है कि करना है, ठीक है। Then you have like invoicing process, nobody understands that. Like हम लोग कहते हैं अच्छा हमने बेचना है, ठीक है, इनवॉइस कौन करेगा, कौन बताएगा कि यार ये तुमने प्रोडक्ट लिया, ये 1 साल के लिए ले रहे हो, ये इसकी कॉस्ट है, 1 साल के बाद अगर तुम रिन्यू करोगे तो इसकी क्या कॉस्ट आएगी, अगर तुम खाली सपोर्ट ले रहे हो तो क्या कॉस्ट आएगी। इनवॉइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को इसीलिए जब भी आप एक स्टार्टअप में हो ना, मेक श्योर दैट यू हैव योर टीम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, someone from financial background, someone from say business background, someone from marketing background, someone from HR background. So ये बहुत बहुत important है कि आपके पास हर टाइप का बंदा हो जो कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। हर एक बंदा हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। Like as I said, I am a sales engineer, I am a pre-sales or sales specialist. I don't do invoicing. That's not my job. I can't do it, right? But we have a dedicated seller for that who does the invoicing thing, who go and say अच्छा मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैंने इतना डिस्काउंट दिया है, इतने साल के लिए दिया हुआ है, इतने साल के बाद रिन्यू होगा, सपोर्ट रिन्यू होगी, उसके इतने पैसे लगेंगे, इतनी % पे रिन्यू होगी। These are the things that are important. So invoicing processes are very very important for any business. Again, order processing, आपने कुछ ख़रीदना है या आपने कुछ, अगर किसी ने आपसे कुछ ख़रीदा है तो उसको किस तरह से आपने डिलीवर करना है, या आपने कुछ ख़रीदना है तो किस तरह से करना है। कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, से मेरे कस्टमर ने कुछ ख़रीद लिया मेरे से, आई नीड टू ऑन बोर्ड द कस्टमर, मीन्स कि मैंने अब जाके अपने चीज़ को उसके पास डिप्लॉय करना है, उसके साथ एक रिलेशन मेंटेन करना है, उसके साथ वीकली या मंथली कैचअप करने हैं। सो दिस इज़ लाइक एन कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। फिर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं, अकाउंटिंग इज़ डिफरेंट देन इनवॉइसिंग। अकाउंटिंग वन इज़ कीपिंग अ चेक एंड बैलेंस कि भाई कितना रेवेन्यू आया, क्या हुआ, सैलरीज जा रही हैं नहीं जा रही हैं, कितनी चली गई, किसको क्या गया, थिंग्स लाइक दैट। मार्केट रिसर्च प्रोसेस होना चाहिए आपके पास, सो दैट यू नो मार्केट रिसर्च प्रोसेस। अब जैसे
प्रोसेस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता हो कि यार अच्छा मैंने अगर मार्केट रिसर्च करनी है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करूँगा मैं, वो आपके पास है ना। तो आपने एक फर्ज करें मेरा करंट एम्प्लॉई चला जाता है जो रिसर्च का है, जो मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है, जो नया आएगा उसको पता है यार ये प्रोसेस है, ये फॉलो करना है, ऑटोमेट चीज़ें हुई नहीं है, सीमलेस हुई नहीं है, उसको भी मसला नहीं होगा, आपको भी मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने डिफाइन की हुई होंगी ये चीज़ें। ऑलराइट, एंड देन लास्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कि आपका प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना है आपने, उसका भी प्रोसेस होता है। नॉट गोना गेट इनटू द डिटेल्स बट स्टिल, जैसे आपने टीम गैदर की, मैंने जो है वो पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, मैंने उसके बाद जो है वो देखना है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उसके बाद फिर मैंने उसको पहले छोटे चंक में डेवलप करना है, फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट जैसे आप स्प्रिंट्स के अंदर करें, ऑल दैट प्रोसेस नीड्स टू बी डिफाइंड, राइट। अ लॉट ऑफ, आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बोरिंग व्हेन से बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ जाए आपको या इस तरह की चीज़ें, बट in long run it is very very important, it helps you a lot, इसलिए कि आपके जब processes अपनी जगह पे होते हैं तो आपको जो है ना उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ता कि यार नेक्स्ट क्या करना था, अच्छा इसके बाद क्या करना होगा, you don't have to think about it, क्योंकि अगर प्रोसेस है, आपको मालूम है अच्छा मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है मैं कर लूँगा। मुझे करें मैं अगर अपना से आई स्टार्टेड माई ओन फैशन, that would be a big thing to do though, not a fashion person, but I started my own fashion brand, right? तो मैं Instagram पे जाती हूँ और मैंने जो है ना वो देखना है कि यार what is the things that are attracting young girls, right? मेरी demography क्या है, मैंने किसको market करना है, किस तरह से करना है, so it depends upon your industry basically, and again you can combine multiple processes and create your own one. You don't have to follow a standard, there is no standard honestly. Nowadays mostly there are no standards, जो जिसके लिए चल गया, yeah, so this is how it is, and yeah, that's it from my side from business processes. I hope it wasn't that boring और I hope कि आप लोगों को समझ आया। Any questions other than you? No, I'm just teasing you. कोई किसी के कोई questions हैं, कुछ समझ नहीं आई हो? Yeah, the people who are joining us virtually, अगर आपके कोई questions हों, anyone has any questions? या तो सबको सब समझ आ गई या किसी को कुछ समझ नहीं आया। नहीं, one of the skills that I learned in the sales school is how to sell. So the most important thing that हम, as I said, I used to be very technical person, right? बहुत technical बताती थी, ये product में ये भी है, ये भी है, ये आप यूं करेंगे यूं हो जाएगा। So हमारा एक अपना product है Cognos Analytics. I was talking about Power BI. It's a competitor of Power BI, but our product is basically for enterprises, so enterprise solution. Power BI is more of SME solution. So don't quote me anywhere. So I was like talking, and this was like my first demo with a banking customer here in Pakistan. So my senior said, okay, acha, you prepare, you do the demo. I'm like, I'm not confident enough, right? So he's like, no, it's okay, you do the demo. I'm like, fine, okay, I'll do the demo. He was like, you know what, let's practice first. You show me the demo, consider me your client, and then, so I'm like, okay, fine, cool, and I learned the product like inside out, कि किस तरह से मैं इसके अंदर ना reports generate करूँगी और dashboard बनाऊँगी, and how I'm gonna do this. So he, for the first 10 minutes, he listened to me. He was like, अच्छा, सही है, लगी रहे। So 10 minutes के बाद मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा जी, कहते हैं डैशबोर्ड तो बाकी भी रिपोर्टिंग टूल बना लेंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या कमाल कर रहा है। हम लाइक, वेट, हाँ, मतलब तुम जो मुझे सारी टेक्निकलिटीज बता रही हो, आई एम समवन हु इज नॉट टेक्निकल, ठीक है, मैं एक